پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک درویش یعنی اللہ والے اور ایک چیل اور مچھلی کا واقعہ سنائیں گے۔ بانجھ عورت کا بچہ کیسے پیدا ہوا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر سے کیا نکلا، سب کچھ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن آپ تمام سے گزارش ہے کہ آج کی ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک کرنا اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، کسی جگہ پر ایک پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ پر اللہ کا ایک نیک بندہ رہا کرتا تھا۔ ان کو لوگ پہاڑ والے بابا کہا کرتے تھے۔ وہ درویش یعنی اللہ والے کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے تھے، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ نہ انہیں بھوک کی فکر تھی، نہ پیاس کا غم۔ جب رب کھلا دیتا تو کھا لیتے، جب پلا دیتا تو پی لیتے۔ اس پہاڑ کے نیچے ایک ندی بہتی تھی۔ ایک مچھوارا اس ندی میں جال ڈالتا اور مچھلیاں پکڑتا۔ وہ غیر مسلم مچھوارا تھا، یعنی مسلمان نہیں تھا۔ اس کی بیوی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو کام میں اپنے باپ کی مدد کرتا تھا، اور دونوں باپ بیٹے مفلسی اور غریبی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اگر کسی دن مچھلی جال میں نہیں پھنستی تو اپنے پاس رکھے ہوئے بت کی پوجا کرتے اور کہتے، اے ہمارے خدا، ہمارے حالات کو بدل دے، تیرے سوا ہماری کون سننے والا ہے؟ ہمارے پاس بھی بہت سی مچھلیاں پھنسیں، ہماری بھی زندگی عیش کے ساتھ گزرے۔ اب کچھ ہی دور پر اس غیر مسلم کا ایک مسلمان دوست رہا کرتا تھا جو کسان تھا۔ وہ بھی بہت غریب تھا۔ غیر مسلم مچھوارا کبھی کبھی ایک مچھلی اس کو بھی دے دیا کرتا تھا۔ وہ کسان بے اولاد تھا۔ اس کی بیوی روتی اور دعائیں کرتی، یا اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا کر دے، لیکن اب تک انہیں کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ مجھے تو بانجھ قرار دے دیا گیا ہے، لیکن تو ہم جیسوں کی آواز بھی سننے والا ہے۔ دوستوں، اس کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک دن اس کو پتا چلا کہ فلاں پہاڑ پر ایک درویش یعنی اللہ والے رہتے ہیں، جن کو لوگ پہاڑ والے بابا کہتے ہیں۔ ان کی دعا سے اللہ تبارک تعالیٰ اولاد نرینہ یعنی بیٹا عطا کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، ہم لوگ اس درویش بابا یعنی پہاڑ والے بابا کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اولاد کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا، نہیں، میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، بہت کمزور ہے۔ تم کو جو مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو۔ میں کسی درویش بابا پیر فقیر کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا۔ اب دوستوں، اس کی بیوی بھی تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ رہی تھی۔ وہ تو بس ان فقیر بابا کے پاس دعا کروانے کے لیے جا رہی تھی تاکہ وہ اس عورت کے لیے دعا کر دیں اور اللہ اسے اولاد عطا فرما دے۔ بیوی اپنی اس بات پر اڑی رہی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے بات چیت تک کرنی بند کر دی، لیکن دل میں دعا کرتی رہی، یا اللہ کچھ ایسا سبب پیدا کر دے کہ میں کسی نہ کسی طرح پہاڑ والے بابا کے پاس پہنچ کر ایک بار ان سے دعا کروا لوں۔ ایک دن اس نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، منت مانگی، آج اگر میرے گھر میں مچھلی آ جاتی ہے تو میں اس کو پکا کر درویش اللہ والے کی خدمت میں پیش کروں گی۔ آج اگر ایسا ہوا تو میں ان کو مچھلی کھلاؤں گی تاکہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے اور وہ میرے لیے دعا کر دیں۔ یہ ایک عورت کی تمنا تھی، جبکہ اللہ والوں کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کوئی ہیرے جواہرات یا مچھلی یا عمدہ کھانا لے کر آئے۔ وہ تو ہر کسی کی دعا کو اپنی دعا بنا لیتے ہیں۔ یہاں وہ غیر مسلم مچھوارا بھی غربت کے ہاتھوں مرا جا رہا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے رہے، لیکن مایوسی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیٹا بھی باپ سے کہتا، بابا کب ہماری زندگی بدلے گی؟ ایسا کیا نہیں ہو سکتا ہے کہ روزانہ ایک ایک مچھلی پکڑنے کے بجائے ہمارے جال میں ایک ساتھ ہزاروں مچھلیاں پھنس جائیں اور ہماری ساری پریشانی دور ہو جائے؟ تو آدمی کہنے لگا، بیٹا ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، ہم جو بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول نہیں کرتا۔ ادھر ان پہاڑ والے درویش اللہ والے کو خواب کے ذریعے مچھوارے کا حال معلوم کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی پہاڑ سے نیچے اتر کر ندی کے قریب آئے اور لوگوں سے معلوم کیا
کہ फला मछुआरा कहाँ रहता है। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी की तरफ इशारा कर दिया कि लो वो रही उसकी झोपड़ी, वहीं पर वो रहता है। अब वो अल्लाह वाले अल्लाह का नाम लेकर वहां जा पहुंचे और वहां पहुंचकर आपने आवाज लगाई, मैं एक फकीर हूं, दरवेश हूं, क्या खाने के लिए कुछ मिल सकता है। मछुआरा बोला, हम तो खुद फाके की जिंदगी गुजार रहे हैं बाबा, तुम बात करते हो खाने की, तुम्हें मैं एक रोटी तो क्या एक निवाला भी नहीं दे सकता, मैंने खुद भी कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा अब बाहर तो आ जाओ, अल्लाह वाले ने आवाज देकर कहा। मछुआरा बाहर निकल कर आया, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा। मछुआरे ने कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हाल हूं, मछलियां जाल में फंसती ही नहीं हैं। अल्लाह वाले ने मछुआरे की बात सुनी तो बोले, बेटा पत्थर के बुत से मांगेगा तो क्या पाएगा, पत्थर के बुत से मांगेगा तो क्या पाएगा, असल खुदा से मांग, अल्लाह तुझे सब कुछ अता करेगा। सबसे बड़ी चीज बेटा इत्मीनान और सुकून है। मछुआरा बोला, कौन खुदा बाबा, आप बुत की बात कर रहे हो ना, जिसकी मेरे बाप दादा परदादा सब पूजा करते चले आए हैं। अल्लाह वाले बोले, नहीं वो नहीं, वो जो एक है, सबको पालने वाला है, जिसने तुझे और मुझे इस पूरी दुनिया को पैदा किया है, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो सबको देता है, सबका पालनहारे हकीकी वही एक है। चाहे तो उसको मान या ना मान, वो हर एक को रिस्क अता करता है, लेकिन जो उसको मान लेते हैं उनकी तो किस्मत ही बन जाती है, उनकी दुनिया और आखिरत संवर जाती है। बुजुर्ग की बातें सुनकर वो मछुआरा हैरत से बोला, अच्छा तो क्या ऐसा है आपका खुदा। बाबा आज मैं जाल फेंकूंगा नदी में, मेरे जाल में इतनी मछलियां फंसे कि कभी मेरा जाल खाली ना हो। अल्लाह वाले ने कहा, तो लो अल्लाह का नाम और जाओ जाकर जाल फेंको। मछुआरे ने कहा, अगर सच में आप जिस खुदा की इबादत करते हैं उसने मेरी फरियाद सुन ली तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। फिर मछुआरे ने अल्लाह वाले के कहने पर नदी में जाल डाल दिया। अल्लाह वाले बोले, मैं चलता हूं, जो खबर हो मुझे दे देना, मेरी इबादत का वक्त हो गया है। और हां, मछली के पेट से जो कुछ भी मिले उसे ले जाकर सबसे बड़े जड़ी बूटी वाले ताजिर को दिखा देना। उसके बाद वो दरवेश दोबारा पहाड़ पर चले गए। अब यहां वो गैर मुस्लिम मछुआरा अल्लाह वाले पर भरोसा करके जाल पानी में डालकर बैठा रहा। दिन भर के इंतजार के बाद आखिरकार दो बड़ी बड़ी मछलियां उसके हाथ लग गईं। उन्हें देखकर वो बड़ा खुश हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, ये उस दरवेश अल्लाह वाले की दुआ से हुआ होगा। एक मछली मैं अपने बेटे और अपने लिए रख लेता हूं और एक ले जाकर बाजार में बेच दूंगा। अभी वो अपना जाल समेट ही रहा था कि एक चील तेजी के साथ झपटी और अपने पंजों में एक मछली दबाकर उड़ गई। मछुआरे ने जब ये देखा तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। लो, इतनी मेहनत से सारा दिन बैठकर मैंने मछली को पकड़ा, आज मछली जाल में फंसी, अब मैं क्या खाऊंगा, क्या बेचूंगा। बेटा बोला, बाबा अब क्या होगा। मछुआरा बोला, कोई बात नहीं बेटा, उस अल्लाह वाले ने कहा था जरूर कोई ना कोई मसलिहत होगी हर काम में। मेरा मन कहता है कि आज हमें खुशी मिलकर रहेगी। बेटा बोला, पर बाबा मुझे बहुत भूख लग रही है। मछुआरा बोला, तो चलो बेटा, इसको बाजार में नहीं बेचते हैं, इसी मछली को काट कर पका लेते हैं और हम दोनों खा लेंगे। वो मछली लेकर अपने घर आ गए। अब जो मछली को काटा तो उसके अंदर से कोई हीरे जवाहरात तो नहीं निकले, लेकिन एक लाल रंग का बीज निकला। बेटे ने कहा, बाबा ये कैसा बीज है। वो उसको फेंकने ही वाला था कि बाप को अचानक याद आ गया। उसने कहा, रुको, अल्लाह वाले ने कहा था मछली के पेट के अंदर से जो कुछ भी मिले उसको फेंकना नहीं, बल्कि उसको ले जाकर जड़ी बूटी वाले बड़े ताजिर की दुकान में दिखाना। अब बेटे को साथ लेकर वो बड़े ताजिर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उसे वो लाल रंग का बीज दिखाया, वो कहने लगा, ये तुम्हें कहां से मिला। मछुआरा बोला, ये हमें मछली के पेट के अंदर से मिला है। तो उस ताजिर ने कहा, ये तो बेशकीमती जड़ी बूटी है, ये तो लाखों में बिका करती है। रईस लोग इसे खरीदते हैं क्योंकि इससे
उस बीमारी का इलाज किया जाता है जो बीमारी ला इलाज होती है। लाओ ये तुम मुझे दे दो, बताओ किस कीमत में बेचोगे। मछुआरा ये सब कुछ सुनकर खुश हो गया। उसने कहा आप जो कीमत लगा दें। वो ताजिर बहुत अमीर रईस आदमी था। उसने कहा चलो ठीक है, 2 लाख दिरहम में ये बीज तुम मुझे बेच दो। मछुआरा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने 2 लाख दिरहम लिए, बेटे को खुशखबरी दी। सही कहा था ना उन अल्लाह वाले ने, चलो अब हमें उनसे मुलाकात करनी चाहिए। अब दोस्तों आगे सुनो कि वो चील उस मछली को लेकर कहां गई थी। वो चील उस मछली को उठाकर उड़ती हुई एक बहुत ऊंची पहाड़ी की तरफ जा पहुंची, लेकिन एक दूसरी चील ने उससे मछली को छीनने की कोशिश की, उस पर हमला कर दिया। अब दोनों चीलों में छीना झपटी होने लगी और मछली चील के पंजों से फिसलकर पहाड़ी पर रहने वाले उसी अल्लाह वाले की झोपड़ी के सामने आकर गिर पड़ी। दरवेश अल्लाह वाले जो कि अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे, जमीन पर किसी चीज के गिरने की आवाज को सुनकर वो झोपड़ी से बाहर आए तो उन्होंने देखा एक मछली थी। मछली को आपने उठाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे करीम, तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। मैंने तुझसे मछली ही तो मांगी थी, मगर तुझको तो मालूम है मेरे पास मछली पकाने के लिए ना तो तेल है ना मसाला है। मुझे तो पकी पकाई मछली चाहिए थी, मुझे कच्ची मछली नहीं चाहिए थी। मैं ये मछली नहीं खा सकता हूं, इसे वापस मंगवा ले और मुझे पकी हुई मछली भिजवा दे। ये कहकर अल्लाह वाले अपनी झोपड़ी में वापस चले गए और थोड़ी देर के बाद जब वो दोबारा बाहर आए तो मछली वहां से गायब थी। उसे एक और चील उठाकर ले गई थी और वो दूसरी चीलों से बचती हुई उससे मछली को छीनने के लिए उसका पीछा कर रही थी। पहाड़ी के नीचे की तरफ वो उड़ रही थी, लेकिन दोनों चीलों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उससे मछली को छीनने की कोशिश की। इस लड़ाई झगड़े में चील के पंजों से वो मछली निकलकर उसी गरीब किसान के आंगन में जा गिरी जिसकी बीवी ने दुआ की थी कि या अल्लाह, मुझे आज अगर मछली मिल जाए मैं उसको पकाऊंगी और अल्लाह वाले बाबा को खिलाऊंगी। अब किसान की बीवी ने दौड़कर उस मछली को उठा लिया और किसान से बोली, मैं तुमसे कितने दिनों से कह रही थी ना कि मेरा दिल मछली खाने को चाह रहा है, तुमने तो लाकर नहीं दिया। आज अल्लाह ताला ने मेरी खातिर इंतजाम कर दिया। मैंने मन्नत मांगी थी जब भी मछली पकाऊंगी पहाड़ी वाले अल्लाह वाले को ले जाकर जरूर खिलाऊंगी। अब मैं मसाला पीसकर मछली को तैयार करती हूं, तुम बाबा को जाकर दे आना और कहना कि बाबा हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें औलादे नरीना अता करे, मैं बांझ न रहूं। किसान अपनी बीवी की बातें सुनकर कहने लगा, अजीब बातें करती हो। उसने कहा, मछली आ गई है ना, मैंने तुमसे तो नहीं मांगा था। अब किसान की बीवी ने मछली को तैयार किया। इतने में वो किसान का मछुआरा दोस्त भी वहां पर आ गया, क्योंकि उसको किसान से मुलाकात करनी थी। जब वो वहां पर पहुंचा उसे मछली के पकने की खुशबू आने लगी। किसान ने अपने मछुआरे दोस्त से कहा, यार अच्छा हुआ तुम यहां आ गए, अच्छे वक्त पर आए हो। आज मेरी बीवी ने मछली पकाई है, खाना खा कर जाना। मछुआरा हैरान होकर पूछने लगा, मगर तुमको मछली कहां से मिली? मैं ही तो तुमको हमेशा मछली लाकर देता था, आज तो मैंने तुम्हें मछली लाकर दिया भी नहीं। किसान बोला, बस यूं समझ लो अल्लाह ताला ने आसमान से टपका दिया हमारे आंगन में। ये सुनकर मछुआरा मुस्कुरा दिया और कहने लगा, अच्छा तो ये मछली वहां से आई है। अब मछुआरे ने कहा, क्या तुम पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना चाहते हो? उसने कहा, हाँ भाई, मेरी बीवी ने तो जिद कर रखा है, अब उसकी जिद के आगे मुझे हार माननी ही पड़ेगी। उसने मन्नत मांगी है और उसकी मन्नत को मैं तोड़ भी नहीं सकता। उसने नियत की है ना, तो ये नियत पूरी करनी पड़ेगी। वो कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे भी उन्हीं बाबा से मुलाकात करनी है। किसान ने कहा, तुम उनको कैसे जानते हो? उसने कहा, वहीं जाकर तुम्हें पता चलेगा। जब मछली बन गई, किसान पहाड़ी वाले बाबा को मछली देने के लिए गया और वो गैर मुस्लिम मछुआरा भी उसके साथ हो गया। किसान ने पकी हुई मछली का प्याला अल्लाह वाले को पेश किया और दुआ की दरख्वास्त की, बाबा दुआ करें, मेरी बीवी ने आपके लिए खुसूसी तौर पर यह मछली भिजवाई है।
दरवेश अल्लाह वाले ने उन दोनों को देखा और पूछा, मछली कहां से आई? किसान ने कहा, आसमान से गिरी। अब दरवेश अल्लाह वाले ने यूं ही बनकर मजाक के तौर पर मछुआरे से पूछा, तुम कौन हो? मछुआरे ने कहा, बाबा आप मुझे नहीं पहचानते, आज सुबह ही तो आपसे मुलाकात की थी मैंने, और आप ही की दुआ से मुझे वो मिल गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बाबा आपकी दुआ से मेरी जिंदगी बदल गई। अल्लाह पर यकीन करके मैं नाकाम और नामुराद नहीं हुआ। दरवेश अल्लाह वाले ने सारा माजरा सुनकर कहा, हम सब ने मछली खाने की ख्वाहिश की, जो अब उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। मछुआरा बोला, मैं तो पहले ही आपका शुक्रगुजार हूं, आपकी वजह से आज मैं और मेरा बेटा बहुत अमीर हो चुके हैं। अल्लाह वाले ने कहा, तुमने मुझसे पूछा था ना कि खुदा कौन है? तुम जिसकी पूजा करते हो ना, वो एक पत्थर का बुत है। ना वो तुम्हें सुन सकता है, ना तुम्हें देख सकता है, ना ही तुम्हें कुछ दे सकता है, लेकिन तुम्हारा अकीदा इतना मजबूत है तुम्हारे बुत पर कि बेशक देने वाली जात तो अल्लाह ही है, लेकिन तुम्हें लगता है तुम्हारा बुत तुम्हें दे रहा है। असल जात तो वो है जो नजर नहीं आती है। अब तुम देखो, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, मुझे मछली खानी है, वो भी पकी हुई। इस किसान की बीवी के दिल में आया, ये अपने बेटे के लिए दुआ करवाएगी और मेरे लिए पकी हुई मछली भिजवाएगी। चील किस तरह तुम्हारे पास से मछली को लेकर उड़ी और किसान की बीवी के पास वो मछली आ गई। मछली इनके घर के आंगन में गिरी, उसने मछली को पकाया और हम तक ये मछली तैयार होकर पहुंच गई। अब बताओ, ये कौन सी जात है जो ये सारा काम अंजाम दे रही है? न तुम्हारी बात इस किसान की बीवी तक पहुंची, न किसान की बीवी ने मुझसे ऐसी कोई बात कही थी, लेकिन वो जो जात है जो हम सब के दरमियान मौजूद है, हर जगह पर मौजूद है, जो लामका पर है, जो हमारे बहुत करीब है, वो हम सब को सुनता है, जानता है, हमारी हाजतों को पूरा फरमाता है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था, मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ, मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ। अब क्या तुम कलमा पढ़ना पसंद करोगे? उसने कहा, क्यों नहीं बाबा, मैं तो उसी वक्त मुसलमान हो जाता अगर मेरे सामने आप होते। मैं आपके सामने कलमा पढ़ता हूँ, आपके हाथों पर बैत करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। किसान ने यह मंजर देखा तो उसके दिल में अल्लाह वाले की कद्र मंजिलत बढ़ गई। उसने कहा, सच में मैंने अपनी बीवी से कहा था मैं किसी अल्लाह वाले को नहीं मानता, लेकिन आज आपके ही यकीन को देखकर मैं इस बात को मान गया। बाबा हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमें साहिबे औलाद बना दे। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हारी मछली खाने के बाद तुम्हारे लिए दुआ नहीं की, मैं उससे पहले ही तुम्हारे लिए दुआ कर चुका हूं। लेकिन अल्लाह ताला को सही वक्त पता है, वही जानता है कि किस इंसान को कौन सी चीज किस वक्त देना है। गैब का इल्म उसी के पास है, हम तो बस उसके अदना से बंदे हैं। हम अल्लाह की बारगाह में सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हें जरूर खुशखबरी मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। जब किसान अपने घर पहुंचा, उसकी बीवी ने कहा, आपने अल्लाह वाले से दुआ करवा ली? तो कहने लगा, हाँ मैंने दुआ करवा ली, और एक खुशखबरी है कि अल्लाह वाले कहते हैं हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द साहिबे औलाद हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमें बेटे जैसी अजीम नेमत अता करेगा, या बेटी भी अता होगी तो मैं उस पर भी खुश होऊंगा। बीवी ने कहा, आमीन, मैं भी खुश हूं। और उसने कहा, तुम जानती हो मेरा मछुआरा दोस्त अब मुसलमान हो गया है, क्योंकि अल्लाह वाले ने उसकी मदद की और उसके यहाँ 2 लाख दिरहम आ गए। सिर्फ एक मछली के अंदर मौजूद एक नन्हे से बीज के जरिए उसकी जिंदगी बदल दी गई। सुभान अल्लाह। कुछ ही दिनों में किसान और उसकी बीवी को भी खुशखबरी मिल गई और अल्लाह पाक ने उन्हें साहिबे औलाद कर दिया। जिसको लोग बांझ बांझ कहकर चिढ़ाया करते थे, आज वो एक बच्चे की मां बन चुकी थी। अल्लाह वाले के यकीन ने उन्हें अल्लाह के करीब कर दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की हमारी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह फिर हमारी और आपकी एक नए वीडियो के जरिए मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।